Hello everyone, welcome back to our platform. In this lecture we will study normal and self adjoint operator. पिछले लेक्चर में हमने adjoint operator को डिस्कस किया था where we supposed a linear operator t from v to v. For this t we defined a linear operator t star that is also from v to v, and we say if they follow this condition that inner product of t of x comma y equal to inner product x comma t star of y. If this is true for all x comma y in V, then we call this t star as adjoint of this t. Okay. Now the moment we have a linear operator, then we can think कि क्या ये t डायगोनलाइजेबल है, क्योंकि जैसे ही t डायगोनलाइजेबल होता है इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, विच इज़ दी मोस्ट सिंपलेस्ट मैट्रिक्स फॉर्म. ओके, सो इस t के लिए we studied a strong result, that is t is diagonalizable if and only if there exists an ordered basis for V containing eigenvectors of t. तो अगर v के लिए हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर्ड बेसिस है जिसका हर एक वेक्टर आइगन वेक्टर है ऑफ t, देन t विल बी डायगोनलाइजेबल. ओके, नाउ वी आर एट ए स्टेज जहाँ पर हम ये सोच रहे हैं कि क्या हम ऐसे किसी ऑर्डर्ड बेसिस के एग्जिस्टेंस की बात कर सकते हैं जो कि ऑर्थोनॉर्मल हो और जिसका हर एक वेक्टर आइगन वेक्टर हो. ओके, सो इन दिस लेक्चर हम ये आइडेंटिफाई करना चाहेंगे कि क्या V के पास कोई ऐसा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हो सकता है जिसका हर एक एलिमेंट एक आइगन वेक्टर हो, और उस केस में इस T पर क्या कंडीशन होनी चाहिए. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन, एंड वी विल स्टार्ट द डिस्कशन बाय डिस्कसिंग अ लेमा. लेमा, let T be a linear operator on a finite dimensional inner product space V. If T has an eigenvector, then T star also has eigenvectors. ओके, आइगन तो ये लेमा हमें क्या बता रही है कि ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास जिनके लिए आइगन वेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं. जैसे कि हमने आर स्क्वायर में रोटेशन बाय थीटा ये देखा था, तो उसके लिए कोई आइगन वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करते हैं. तो अगर किसी लीनियर ऑपरेटर टी के लिए आइगन वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसके एडजॉइंट ऑपरेटर के लिए भी आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उन दोनों आइगन वेक्टर में कुछ रिलेशन है. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दी existence of eigenvector for t star through the existence of eigenvector of t. Okay, now let us prove कि t के लिए eigenvector का existence t star के लिए eigenvector के existence को कैसे imply करता है. ठीक है, so let us discuss. Let t is defined from v to v and t star be the adjoint of t. That is, we have always this relation that t of x comma y is equal to x comma t star of y for all x comma y in v. Okay, now the supposition that t has an eigenvector, तो कोई ना कोई आइगन वैल्यू रही होगी. ओके, ऑल्सो लेट v belongs to v is an eigenvector corresponds to
corresponds to eigenvalue lambda. Okay, if we are saying that lambda के corresponding eigenvalue v है, then we must have t of v equals to lambda of v. So ये हमें supposition में given है, we use only that. Okay, now suppose then for any x in v, we know that inner product of 0 with any x is always equals to 0. This is one property of inner product. Now in place of 0 you can write this as also t minus lambda I on v equals to 0, right? So in place of 0 you can write this. So this implies inner product t minus lambda I on v comma x is equal to 0, right? Then using the property that this t minus lambda I can be written in the form of adjoint, so we can write this as v comma t minus lambda I star on x is equal to 0, right? Now this implies that v comma, if we write this linear operator, then it will be t star minus lambda bar I on x inner product is equal to 0, right? Now you can see, if we think of this particular component, that is t star minus lambda bar I on x, where x is coming from v. So what are these vectors? You can see this is nothing but the set, that is the range of t star माइनस लेमडा बार आई. ठीक है, ये जो कोई भी लीनियर ऑपरेटर है उसका रेंज सेट है. ठीक है, नाउ यू आर सेइंग दैट हमारे पास ऐसा एक नॉन जीरो वेक्टर v है जो इस v के किसी सब स्पेस के ऑर्थोगोनल है, राइट? यहाँ पर x पर हमने कोई भी सपोजिशन नहीं रखा है, दिस x इज टोटली आर्बिट्ररी. तो हम ये कह रहे हैं कि v के हर एक एलिमेंट को जब हम कंसिडर करेंगे और उस केस में जब हम इस तरीके के एलिमेंट को कलेक्ट करेंगे, दैट कलेक्शन इज रेंज ऑफ टी स्टार माइनस लेमडा बार आई. ओके, अब क्योंकि इस तरीके का जो रेंज है दैट इज अ सब स्पेस ऑफ वी, सो आई कैन से दिस रेंज ऑफ टी स्टार माइनस लेमडा बार आई इज अ सब स्पेस ऑफ वी, राइट? अब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि v का एक नॉन जीरो वेक्टर v है विच इज ऑर्थोगोनल टू अ सब स्पेस दैट इज रेंज ऑफ टी स्टार माइनस लेमडा बार आई. तो अगर आप v को इस तरीके से कंसिडर करें तो ये जो सेट है रेंज ऑफ टी स्टार माइनस लेमडा बार आई, सपोज दिस इज दिस. ओके, ये हमारा रेंज है और ये जो v वेक्टर है ये यहाँ पर है, क्योंकि हमें ये पता है कि किसी भी वेक्टर स्पेस W और उसके कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑर्थोगोनल सब स्पेस का इंटरसेक्शन में केवल और केवल जीरो वेक्टर ही आता है. अब यहाँ पर अगर v नॉन जीरो वेक्टर है तो इसका मतलब ये v कहीं इस तरफ है, रेंज का एलिमेंट नहीं है. अब अगर रेंज का एलिमेंट नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि इस v को अगर v के अंदर अगर हम रेंज स्पेस ऑफ टी स्टार माइनस लेमडा बार ऑफ आई को सपोज करें तो वहाँ पर एक वेक्टर स्मॉल v ऐसा मिलेगा जो कि v में है बट रेंज में नहीं है. और जब कभी भी ऐसा होगा देन यू कैन सी, आई कैन राइट दिस इम्प्लाइज दैट v is orthogonal to the range space of t star minus lambda bar I. इस ऑपरेटर का रेंज स्पेस जो भी आएगा उसके ऑर्थोगोनल है. एंड v is not in range
ऑफ टी स्टार माइनस लेमडा बार आई, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है इसलिए इसकी रेंज में नहीं है। ठीक है, in a more precise way I need to write this at this place. Okay, this implies that v is not in range of t star minus lambda I. Okay, that is more suitable, क्योंकि जैसे ही v ऑर्थोगोनल सब स्पेस में है, दैट इम्प्लाइज दैट कि ये v हमारे वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, बस इस रेंज का एलिमेंट नहीं है। ओके, सो आई कैन राइट, सो we have a vector v of v that is not in the subspace range of t star minus lambda bar I. ओके, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? therefore this is a proper subspace of v, so you can say therefore range of t star minus lambda bar I is a proper subspace of v. अगर ये प्रॉपर सब स्पेस ऑफ v है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ दिस रेंज और द रैंक ऑफ दिस इज नॉट इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ v, which implies that rank of t star minus lambda bar I is not equal to dimension of v. और rank नलिटी थ्योरम से हमें पता है that rank of this and plus nullity of this will result is dimension of v, right? तो अगर इसका रैंक इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब this implies that nullity of t star minus lambda bar I is strictly greater than 0. और जैसे हम कह रहे हैं कि इसका नलिटी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इसके नल स्पेस में एटलीस्ट 0 के अलावा कोई एलिमेंट है। ठीक है, कम से कम 0 के अलावा कोई ना कोई एलिमेंट रहा होगा, तब ही इसका डायमेंशन नॉन जीरो है। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर in the null space of t star minus lambda bar I. ओके, अब इसकी नल स्पेस को हम डिफाइन कैसे करते हैं? व्हाट इज द नल स्पेस ऑफ t स्टार माइनस lambda बार I? तो इसका नल स्पेस क्या बनेगा? दिस कंटेन्स this kind of element. We collect all let me write x belongs to v, जिनके लिए we have t star minus lambda bar I on x becomes 0. तो ये इसका नल स्पेस डिफाइन करता है। अब हमें पता है कि जब कोई भी x और ऐसा नॉन जीरो एक वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि जीरो के लिए तो ये रूल हमेशा ही सेटिस्फाइड है, तो अगर v का ऐसा कोई नॉन जीरो वेक्टर हम कह रहे हैं कि एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, सो इन दैट केस लुक एट दिस रिलेशन। इस केस में क्या ये x इस t स्टार के लिए लेमडा बार के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? सो दिस शोज कि जो भी नॉन जीरो वेक्टर्स होंगे वो सारे इस लेमडा बार के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एंड each non-zero vector in the null space of t star minus lambda bar I is an eigenvector of t star corresponding to
आइगन वैल्यू लेमडा बार। ओके, सो यहाँ पर हमने बताया दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप, जहाँ पर हमने बताया है एग्जिस्टेंस ऑफ आइगन वेक्टर, और यही लेमा का सेंट्रल आइडिया है कि अगर टी के लिए कोई आइगन वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है तो टी स्टार के लिए भी आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। और वो हमने किसके थ्रू बताया कि नल स्पेस में कोई नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, और नॉन जीरो नल स्पेस में जो भी नॉन जीरो वेक्टर्स होते हैं वो हमेशा आइगन वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो इस तरीके के ऑपरेटर के लिए नल स्पेस के जितने भी एलिमेंट होंगे वो लेमडा बार के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कौन सा भी एलिमेंट चूज कर सकते हैं जो बताएगा कि ये टी स्टार का एक आइगन वेक्टर है। हेंस whenever we have eigenvector for t, then then we have the eigenvector for t star. Okay.